শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 37 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি লীলা 2.36 onwards. ও আমি ভুল বলছি, এখানে অধ্যায় বলা নেই, এখানে পরিচ্ছেদ বলা হয় চৈতন্য চরিতামৃতে। ওখানে চৈতন্য মঙ্গলে অধ্যায় বলা হয়েছিল। না না, অধ্যায় না, অন্য কিছু বলা হয়েছিল, খেয়াল নেই। 37 নম্বর শ্লোক। হিন্দিতে অধ্যায় আছে, হিন্দিতে অধ্যায়। পৃথিবী জয়ছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়। পৃথিবী জয়ছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়। জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্বাশ্রয়। জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্বাশ্রয়। পৃথিবী যেমন মাটি দিয়ে তৈরি সমস্ত পাত্রের মূল কারণ ও আশ্রয়। মিউট করে দিন। তুমিও হচ্ছে সমস্ত জীবের পরম কারণ ও আশ্রয়। সমস্ত समस्त पात्रेर मूल कारण आश्रय। जितना भी वस्तु देख रहे, जितना भी व्यक्ति देख रहे, समस्त में पृथ्वी है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस यस प्रभु जी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। जितना भी आसपास का आपका वस्तु देख रहे हैं सब इसी से बना हुआ है। पृथ्वी যেমন মাটি দিয়ে তৈরি সমস্ত পাত্রের মূল কারণ ও আশ্রয়, তুমিও হচ্ছে সমস্ত জীবের পরম কারণ ও आश्रय। विशाल पृथ्वी जमन समस्त माटिर पात्र। अभी माटी का पात्र के बारे में सोचिए, कोई मिट्टी का भार के बारे में सोचिए, ठीक है। उपादान समूहेर मूल उत्स, मेन इंग्रेडिएंट इज मड। अगर कोई माटी का पात्र देखेगा तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है? मड। और बाकी इंग्रेडिएंट क्या है? वाटर वाटर होगा। তেমনি পরমাত্মা হচ্ছেন সমস্ত জীবের উৎস, সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের কারণ। সেই কথা ভাগবত গীতায় 7ম অধ্যায়ের 10ম শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে ভগবান বলেছেন বীজং মাং সর্বভূতানাং, আমি হচ্ছে সমস্ত জীবের বীজ। এবং উপনিষদে বলা হয়েছে নিত্য নিত্যানাং চেতনস চেতনানাং, ভগবান হচ্ছে সমস্ত চেতনের মধ্যে परम चेतन। परमेश्वर भगवान हच्छेन जड़ और चेतन उभय सृष्टिर मूल उत्स, ठीक है। वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, जड़ और चेतन मीन्स हम लोग का भी मूल उत्स, हम लोग तो व्यक्ति है ना, भगवान है। और जितना वस्तु है उसका भी मूल उत्स भगवान ही है। क्योंकि अच्युत करुणेश्वर प्रभु जब सृष्टि होता है तब वस्तु का दरकार होता है। सृष्टि के समय भगवान ये 24 महातत्व ये सब आयोजन कर देता है ना। जैसे सोचिए अभी कोई महिला रंधन करने वाले हैं तो उनके हस्बैंड को बोलेगा हेलो सुनो, आते वक्त ना तुम आलू टमाटर नमक और गाजर ये सब लेते आना। तो उनका हस्बैंड क्या करे, सब ये सब बाजार से खरीद के उनको आकर पकड़ा देगा। फिर माता जी क्या करेगी, सब लेकर इसको से पकाएगी। ठीक तेमনি भगवान सृष्टि करार आगे এই 24 উপাদান ও মহাতত্ত্ব সব এগুলো প্রদান করেছেন দুর্গা দেবীকে। না তুমি এবার এগুলো আয়োজন করো, তুমি কুকিং করো, সবাইকে আটকে রেখে দাও এখানে। তো উনি সেইভাবে সবাইকে নিয়ন্ত্রণাধীন করে রেখে দিয়েছেন ওনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা। That's how this material world got created and is maintained.
পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড় ও চেতন উভয় সৃষ্টির মূল উৎস। বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদীরা বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে যদি हाँ बीच बीच में स्क्रीन आता है, कभी नहीं आता है। अभी आपकी आती है, कभी नहीं आती। अभी तो दिख रहा है, अभी तो है, अभी आपको दिख रहा है, अभी है। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড় ও চেতন উভয় সৃষ্টির মূল উৎস। বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদীরা বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে যদিও জীবের দুই রকম এর শরীর রয়েছে, মন বুদ্ধি ও অহংকার যুক্ত সূক্ষ্ম শরীর এবং পঞ্চভূতাত্মিক স্থূল শরীর, এবং যদিও সে এভাবেই সূক্ষ্ম স্থূল ও আধ্যাত্মিক তিন রকমের শরীরে বিরাজ করছে, তবু সে चिन्मय आत्मा ছাড়া আর কিছুই নয়। ठीक है, लेकिन उन लोग बोलता है कि हम लोग चिन्मय आत्मा ছাড়া कुछ नहीं, माने हम लोग भी भगवान ही है। জীবাত্মা যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর থেকে প্রায় অভিন্ন, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানও জড় এবং চেতন জগৎ থেকে প্রায় অভিন্ন। ये उन लोग का मत है, उन लोग का मत। জীবাত্মা যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর থেকে প্রায় অভিন্ন, वैसे ही परमेश्वर भगवान और जड़ एवं चेतन जगत থেকে প্রায় অভিন্ন। জড় বিষয় ভোগের চেষ্টায় মগ্ন বদ্ধজীবে পরিপূর্ণ মায়িক জগৎ হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি জাত, এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবার যুক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে পূর্ণ চিৎ জগৎ হচ্ছে তার অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। भगवाনের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে পূর্ণ चित जगत হচ্ছে। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है भगवान का, वो क्या है? वो भगवान का प्रेममयी सेवाएं जो लोग शुद्ध भक्त लोग एंगेज्ड है, उस लोगों के लिए भगवान ने चित जगत रखा है, और वो भगवान का अंतरंगा शक्ति का प्रकाश है। ठीक है, जो भगवान का धाम है वो भगवान का अंतरंगा शक्ति का प्रकाश है, और वहां किसका स्थान है? समस्त जीव जो भगवान का सेवा में नियुक्त है परमानेंटली। और जड़ जगत भगवान का बहिरंगा शक्ति प्रकाश। वहां किनका, वहां कौन भरा हुआ है? वहां जीव जो इंद्र तृप्ति में भरा हुआ है, इंद्र तृप्ति में लिप्त है, उनके लिए वो जड़ जगत बनाया गया बहिरंगा से। যেহেতু সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবানের অনুসদৃশ চিৎ পুল্লিঙ্গ, তাই তিনি হচ্ছেন জড় ও চেতন উভয় জগতেরই পরমাত্মা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্বের অনুসরণকারী বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে সবকিছুর কারণ ও কার্যরূপী পরমেশ্বর ভগবান অচিন্ত তত্ত্ব, এবং তিনি তার প্রকাশিত শক্তির সঙ্গে যুগপট ভিন্ন ও অভিন্ন। तो ये है हम लोग का वेदांत सिद्धांत, सर्व कारण कारण भगवान ही है, और তিনি তার প্রকাশিত শক্তির সঙ্গে যুগপট, প্রকাশিত শক্তি মানে ম্যানিফেস্টেড এনার্জি, বহিরঙ্গা শক্তি, সঙ্গে যুগपट भिन्न अभिन्न, एक भी है और अलग भी है। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग भगवान से कैसे एक हैं। हम लोग भगवान से गुणात्मिक एक हैं। भगवान में जो जो गुण है हम लोग उनके अंश होने के नाते हम में भी वही वही गुण है। हाँ, लेकिन क्वांटिटी हम लोग है अनु, भगवान है विभु। हर एक गुण भगवान में जो है वो हम लोग में पाया जाता है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, भगवान कृपामयी है, एकदम कृपा सिंधु है भगवान, कृपा का सागर। भगवान का कृपा करेंगे तो कोटि कोटि जीवों को उद्धार करते हैं, कर भी रहे हैं, अपना भागवत गीता, अपना धाम, ये सब करके भगवान आयोजन करके। लेकिन हम लोग भी कृपामयी है, हम लोग में भी कृपा का गुण है। हम लोग भी कभी कभी किसी ना किसी को कृपा किया होगा ना, से आर्थिक या धार्मिक वजह से किसी ना किसी को कृपा किया होगा। सो दैट क्वालिटी इज इवन इन अस, वॉट एवर इज इन कृष्णा। ठीक है इंद्रावती माता जी, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? क्वांटिटी में डिफरेंस है। नारो शब्दे कहे सर्वजीवेरो निश्चय, आयन शब्दे कहे ताहारो आश्रय। नारो शब्दे नारायण, नार आयन
नारो शब्दे समस्त जीवके বোঝানো হচ্ছে। नर, ये तो हम लोग को मालूम है, नर माने मनुष्य। यहाँ सब जीव को बुलाया जा रहा है, इधर सिर्फ मनुष्य का नहीं, जितना भी जीव है। এবং আয়ন শব্দে তাদের আশ্রয়কে বোঝানো হচ্ছে। তো নারায়ণ মানে সমস্ত জীব का आश्रय। অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ। অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ। এই এক হেতু শুনো দ্বিতীয় কারণ। এই এক হেতু শোনো দ্বিতীয় কারণ। তুমি, তাই তুমি হচ্ছ মূল নারায়ণ, সেটি হচ্ছে একটি কারণ। এখন কৃপা করে দ্বিতীয় কারণটি শোনো। তো ये ये क्यों बोल रहा है तुम्ही हो मूल नारायण? इसीलिए ब्रह्मा जी ऐसे कृष्ण को बोल रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला कि भाई हमको क्यों बोल रहे हो, हम तो कुछ नहीं है, जो है सब नारायण है, तुम हमको क्यों भगवान बुला रहे हो? याद है ऐसा आया था? कौन सा श्लोक में ऐसा आया था? वापस जाइए पीछे, कौन ढूंढ के निकालेगा फटाफट वो श्लोक? 16। ओके, वेरी गुड। 16 नंबर श्लोक में ब्रह्मा विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी 15 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিভূতি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরিব্যাপ্ত সেই ব্রহ্ম হচ্ছে গোবিন্দের অঙ্গকান্তি। আমি ব্রহ্মা গোবিন্দের ভজনা করি, তিনি আমার পতি, তাই তারই কৃপাতে আমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার শক্তি লাভ করেছি। না 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 না, एक श्लोक था जहां भगवान बोले भाई मेरे को क्यों स्तुति कर रहे हो, लक्ष्मी नारायण को बोलो। तो फिर ब्रह्मा जी बोलते नहीं नहीं नहीं, नारायण जी क्या बोले, तुम ही नारायण हो। फिर ब्रह्मा जी प्रूव करते कैसे आप ही ना माने कृष्ण ही नारायण है। देखिए 34 नंबर श्लोक, हाँ हमको 34 नंबर श्लोक, हाँ हमको 16 नंबर में भेज दिया। उफ, कितना टाइम वेस्ट हो गया। ओके, देखिए 31 नंबर श्लोक में जब लिखा है शिशु वत्स हरि ब्रह्म अति करी अपराध, 31 नंबर श्लोक सब देखिए क्या लिखा है, शिशु वत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमाइते मांगे न प्रसाद, प्लीज हमको क्षमा कर दिए, मैंने आपका फ्रेंड्स लोग को अपहरण कर लिया था। 32 नंबर श्लोक देखिए क्या लिखा है, जिनका बुक नहीं हो तो सिर्फ सुनिए। তোমার নাভি পদ্ম হইতে আমারও জন্মদয়, তুমি মাতা মিতা আমি তোমারও তনয়, পিতা माता बालकेरो नालय अपराध, अपराध क्षमा मोरे करो हो प्रसाद। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा नाभि से निकला हुआ हूँ, मेरा मम्मी डैडी आप ही है। फिर 34 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, कृष्ण कहेन ब्रह्मा तुम्हार पिता नारायण, आमी गोप तुम्ही कोइचे आमारो नंदन। अरे अरे तुम्हारा पिता नारायण है ब्रह्मा, मैं तो गोप हूं, मेरे को क्या बोला तुम मेरा बाप हो, योर फादर इज नारायण। फिर ब्रह्मा बोल रहे हैं तुम्ही की ना हो नारायण, ब्रह्मा बोलेन तुम्ही की ना हो नारायण, तुम्ही नारायण शोनो ताहारो कारण, तुम नारायण हो इसलिए तुम्हारा कारण सुनिए, व्हाई यू आर नारायण। तो ब्रह्मा जी देन वेंट ऑन टू प्रूव दैट कृष्ण ही नारायण है। उसके लिए अलग अलग श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जैसे पृथ्वी, जैसे 37 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, पृथ्वी जो इच्छे घटो कुलेर कारण आश्रय, जीवेरो निदान तुम्ही सर्वाश्रय। जिसे मिट्टी का पात्र मिट्टी से बना हुआ है, माटी से बना हुआ है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो भी बना हुआ है आप ही से बना हुआ है, व्यक्ति भी आपसे बना हुआ है, वस्तु भी आप ही से बना हुआ है। और फिर बता रहे हैं 38 नंबर श्लोक में नारायण, नारो माने मनुष्य यानी जीव, यह जीव पकड़िए इसको,
আয়ন মানে আশ্রিত। নার শব্দে কহে সর্বজীবের নিশ্চয়, आयन शब्देते कहे ताहारो आश्रय। तो बोला ये है पहला कारण क्यों तुम नारायण हो। इसीलिए देखिए 39 श्लोक में क्या बोला ब्रह्मा जी, তাই তুমি হচ্ছ মূল নারায়ণ, অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ। এই এক হেতু শুনো দ্বিতীয় কারণ, इसीलिए दिस इज द फर्स्ट रीजन। अभी सेकंड रीजन सुनिए। सेकंड रीजन 40 नंबर श्लोक में, জীবের ঈশ্বর পুরুষ আদি অবতার তাহা সভা হইতে তোমার, জীবের উৎসহ জীবের ঈশ্বর পুরুষ আদি অবতার জীবের ঈশ্বর পুরুষ আদি অবতার, তাহা সভা হইতে তোমার ঐশ্বর্য অপার। তাহা সভা হইতে তোমার ঐশ্বর্য অপার। हाँ, तो नारायण से पुरुष अवतार आता है, और जितना भी पुरुष अवतार है वो जीव का ईश्वर है। लेकिन आप किंतु तुम्हार ঐশ্বর্য शक्ति तादर থেকে अधिक बहुत आपसे, नारायण से तो कृष्ण का शक्ति और ज्यादा है। ये तो हम लोग को मालूम है कि नारायण का 60 गुण है, भगवान का 64 गुण है, ये तो ठीक है, वो तो है ही। उसके उपरांत भगवान का शक्ति विस्तार बहुत, आदि अनादि आदि गोविंद कृष्ण है। नारायण is just for the sake of expansion for the material world, otherwise there was no need। तो ये ब्रह्मा जी उनको युक्ति दे रहे हैं 41 नंबर श्लोक में, অতএব অধীশ্বর তুমি সর্বপিতা, অতএব অধীশ্বর তুমি সর্বপিতা, তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা, তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা। তাই তুমি হচ্ছে সকলের অধীশ্বর, সকলের পরম পিতা। কৃষ্ণ को बोल रहे हैं তারা মানে পুরুষ অবতারেরা তোমার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে जगत पालन करें। उन लोग का अपना कुछ नहीं है, यू गिव पावर, उसीलिए दे कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, इस तरह से ब्रह्मा जी दो कारण देकर समझा दिया कि किस तरह जो सामने भगवान कृष्ण थे वही उनका माता पिता है। इज इट क्लियर? दो कारण समझ में आया? अगला श्लोक, समझ में आया प्रभु जी? वेरी नाइस। वाले नारायण- एक्सप्लेन किए ना, अब तब और समझ में आया। पीछे वाले एक्सप्लेन किए ना 34 है सब इसीलिए। 42 নারেরও আয়ন যাতে করহ পালন, অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ। যেহেতু তুমি সমস্ত জীবের আশ্রয়, এই পুরুষ অবতারদের পালন করো, তাই তুমি হচ্ছ মূল নারায়ণ। तो आप ही मेरा ओरिजिनल फादर है, क्योंकि हो सकता है कि मैं तो भाई गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से निकला हूं, तो मेरा आप बोल रहे पिता नारायण है, लेकिन उन सभी गर्भोदक्षा विष्णु को कौन पालन करता है? आप, कृष्ण, आप। तो इसीलिए आप ही मेरा पिता, आप ही मेरा माता है। हम लोग को भी ऐसा ही सोचना चाहिए। जब चित्रकेतु को नारद मुनि चित्रकेतु का मृत पुत्र को नारद मुनि जगा दिया, ध्यान से सुनिएगा, और जगाकर बोला, ए बालक का नाम को याद नहीं, कुछ नाम था, हर्ष शोक ना, क्या हर्षित शोक हर्षित ऐसे कुछ नाम रखा था ना, हर्ष शोक ऐसे कुछ नाम रखा था। हाँ, तो हर्षित का कारण और शोक का भी कारण तो है हर्ष शोक। तुम्हारा मदर फादर है, तुम ऐसे करके उनसे बिहेव कर रहे हो, तुम मर जा रहे हो, तुम्हारा मदर फादर अभी इतना दुख में पड़ा हुआ है, ऐसे बोला था ना नारद मुनि। तो फिर हाँ प्रभु, बोले कौन मेरा माता कौन मेरा पिता? असल मदर फादर इज कृष्ण। अब ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहा है भाई तुम्हारा पिता माता नारायण है, तुम हमको क्यों बोल रहे? हम तो ग्वाल बाल है भाई, हम क्या है? बोलो भाई कैसे तुम ही सब पुरुष अवतारों का कारण हो, तुम ही सब पुरुष अवतार का सृष्टि हो, तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हारा गुण पुरुष अवतारों से ज्यादा है, और तुम बोल रहे हो तुम मेरा मदर फादर नहीं हो। यू आर माई ओरिजिनल मदर फादर, एकदम डिटो सेम चीज। समझ में आ रहा है अच्युत करो निश्चित प्रभु? सुनने से भी ध्यान देने से ध्यान अच्छा है, सुनने से भी समझ में आ जाएगा। ओके, एकदम सेम सिचुएशन। যেহেতু बोलिए। তো মূল নারায়ণ, নারায়ণ তো আছে, তাকে আবার মূল নারায়ণ দুটোই মূল মানে নারায়ণের উৎস, নারায়ণের সোর্স অফ নারায়ণ। যেমন हम बोल सकते हैं कि फादर तो मेरा फादर जो मेरा बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन मेरा ओरिजिनल फादर कौन? मूल नारायण, वो तो भगवान श्री कृष्ण है।
वैसे कुछ। सत्यवान माता जी, प्रभु किसने बोला ये? किसने बोला ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, ब्रह्म विमोचन लीला के बाद। যেহেতু তুমি সমস্ত জীবের আশ্রয়, এই পুরুষ অবতারদের পালন করো, তাই তুমি হচ্ছ মূল নারায়ণ। ইউ আর মেনটেনিং অল দিস তিন পুরুষ অবতার। তাৎপর্য, এই জগতে সমস্ত জীবের পালন কর্তা হচ্ছে তিনজন পুরুষ অবতার, কারেক্ট? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এই পুরুষ অবতার থেকে অধিক ব্যাপক ও প্রবল। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পিতা ও প্রভু, যিনি তার বিবিধ অংশ প্রকাশের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালন করেন। যেহেতু তিনি সমস্ত জীবের আশ্রয়, এই পুরুষ অবতারদেরও পালন করেন, তাই শ্রীকৃষ্ণই যে মূল নারায়ণ শ্রীবাস প্রভু, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মূল, বিকজ হি ইজ প্রোটেক্টিং, হি ইজ ম্যানেজিং, হি ইজ নার্চারিং, হি ইজ ফিডিং অল পুরুষ অবতার, মেনটেन করেন, পালন করেন। ওনার আদেশেই সব কিছু পুরুষ অবতাররা করছে। अदरवाइज पुरुष अवतार का कोई दरकार ही नहीं होता, बिकॉज भगवान बोला प्लीज जड़ जगत संभालो तुम लोग जाकर, ये लो हमारा एक्सपेंशन। इसीलिए सो अगर दूसरा एंगल से देखा जाए, एकदम भौतिक है, एक मैंने हमने एकदम क्या बोलते हैं ना, टपोरी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अगर जड़ जगत है, ये लो जीव लोग को भेज दिया, भगवान बोला ये मैं अपने आप को एक्सपेंड कर लेता हूँ पुरुष अवतार रूप में, ठीक है? मेरा नाभि से, मेरा रोम से, पहला वाला पुरुष अवतार से रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलेगा। दूसरा वाला पुरुष अवतार जो है, उनके नाभि से इस कोटि कोटि ब्रह्मांड का एडमिनिस्ट्रेटर निकलेगा, और उनका एक सेक्रेटरी भी रहेगा, एक देवी, जो पूरा इन जीवों को पालन करेगा। मेरा नाभि से जो निकलेगा मेरा रजोगुण का अवतार, उनके द्वारा जितना भी जीव जो भगवान के धाम में विरोध किया, वो सृष्टि करते रहेगा। उन लोग को यहाँ इनके थ्रू से लाऊंगा। तो ब्रह्मा जी के थ्रू से जितना भी जीव भगवान के धाम में विरोध किया, सब उन्हीं से सृष्टि हो रहा है, करेक्ट है ना? उन्हीं से तो सृष्टि हो रहा है। सृष्टि माने क्या उन लोग आगे नहीं था? आगे भी था। सृष्टि माने उन लोग को इधर ले आ रहे हैं। अगर देखे ध्यान से, तो ब्रह्मा जी का सृष्टि माने क्या? ब्रह्मा जी के सचमुच पैदा कर नहीं, ब्रह्मा जी हो सकते हैं प्रजापति है। He is just bringing those living entities from spiritual world to material world. That's it. ऐसे करके पूरा भर दिया जीव 84 लाख योनि में, और उन लोग को पूरा नियंत्रण करके यहाँ फंसा के रखने का कार्य कौन करता है? सेक्रेटरी बोलिए, जो भी बोलिए, एक देवी को नियुक्त किया गया, भगवान का बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी, जिनका अभी पूजा चल रही है। ये तो एकदम कॉमन लैंग्वेज में यही तो है सृष्टि, यही तो है जड़ जगत। 43 नंबर श्लोक। और मूर्ख बोलने से बहुत कठोर लगेगा, व्यक्ति उसी दुर्गा देवी का आराधना कर रहा है, भगवान का आराधना नहीं करके। इतना बहुत भक्त लोग, मेरा घर पे दुर्गा पाठ है, वाह बहुत अच्छा। वैष्णव होकर तुम विष्णु का आराधना नहीं करके विष्णु का एक भक्त का आराधना कर रहे हो ऐसे? जब नाक को सीधा पकड़ सकते हो, नाक को ऐसे घूम के पकड़ने का क्या दरकार है? मेन जो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। श्रवण करते करते भी विश्वास पैदा नहीं हुआ कि मूल आदि कृष्ण है। इसीलिए अलग अलग घटना करके भगवान अलग अलग भक्तों से बुलवाते। देखिए ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये स्तुति सुनकर तो हम लोग को शिक्षा आ जाना चाहिए कि हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड का जो मेन पर्सन है, टॉप मोस्ट जीव कौन है ब्रह्मांड का? ब्रह्मा जी है, जिनका 50 गुण है। वो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण है, तो हम क्यों ना माने? हे प्रभु, हे परमेश्वर भगवान, दया करे আমার তৃতীয় কারণটি শ্রবণ করো। আচ্ছা, ब्रह्मा जी और एक कारण दे रहे हैं ना, 2 कारण तो दे दिया, अभी तीसरा कारण। अनंत ब्रह्मांड वैकुंठ आदि धाम রয়েছে। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जब तक हम लोग भक्ति में जो भी नहीं थे, तब तक समझ में आता था ठीक है दुर्गा देवी है या फिर कोई है, पूजा करना है। लेकिन जब आदमी भक्ति में जुड़ गया और जब कृष्ण तत्व के बारे में धीरे धीरे पता चल गया, इतना टाइम बीत गया, तो इसके अलावा कुछ तो समझ में भी नहीं आता है कि कृष्ण के अलावा कुछ भी है दुनिया में।
कुछ भी। तो एकदम अब इसके अलावा कुछ भी सोचना भी बेकार है कि कहीं देवी है या दुर्गा है या दुनिया है, क्योंकि सब चीज तो कृष्ण से ही उद्भूत हो रहा है, ये तो पक्का पता है। तो फिर क्यों इधर उधर भटकेंगे, ये सबको सोचना चाहिए। तो ठीक है, आप पंडाल हॉपिंग कर सकते हैं, पंडाल में जाइए, देवी का दर्शन कीजिए, लेकिन सब कृष्ण चक्षु से दर्शन कीजिए, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत चक्षु से दर्शन कीजिए कि देवी बहिरंगा शक्ति भगवान का हर एक चीज को भगवत केंद्रिक दर्शन करना चाहिए। हाउ दैट पर्सन और दैट प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू कृष्ण, उस एंगल से सबको दर्शन करना चाहिए। हाँ, तो जाकर पंडाल में आप दुर्गा देवी देख रही है, बहिरंगा शक्ति है। देखिए, फिर दुर्गा देवी के सामने गणेश जी है। ये नरसिंह, ये गणेश जी जो है, ये नरसिंह देव का चरण पकड़ के चरण आश्रित होकर समस्त विघ्न, भौतिक विघ्न हटा देता है। ये देखिए लक्ष्मी देवी, ये भी श्री तत्व है, लेकिन श्री तत्व का जड़ जगत में एक्सपेंशन लक्ष्मी देवी रूप में आई है। भौतिक व्यक्ति को वे धन देकर फंसा देती है, लेकिन जो व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, आध्यात्मिक भगवान का शरण ग्रहण करना चाहता है, उनको भक्ति का धन देकर उनको उद्धार कर देता है। ऐसे करके सोचना चाहिए। ये सरस्वती देवी है। ये सरस्वती देवी भौतिक विद्या देकर लोगों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाकर पूरा गर्व अहंकार पूरा भर देता है और व्यक्ति यहीं फंसा रहता है। लेकिन ये वही सरस्वती देवी है जो जब देखती है कि कोई भगवान का शरण, भगवान का खोज में है, इन सर्च ऑफ कृष्णा, इन सर्च ऑफ गॉड, कृष्णा को भगवान मालूम नहीं, लेकिन एकदम निष्काम से भगवान का खोज कर रहा है, तो वही सरस्वती देवी उनको कृपा करेगा और भगवान की ओर ले आएगा, क्योंकि उनका एक आध्यात्मिक स्थिति भी है सरस्वती देवी का। वो है परविद्या प्रदाता। अभी यहाँ हम लोग को जड़ विद्या प्रदाता है, लेकिन ऊपर में भगवान के धाम में शी इज आल्सो देयर। ऐसे करके हर एक व्यक्ति को उधर ऐसे करके दृष्टि करना चाहिए। ये है कार्तिक है। ये इतना कार्तिक, आई डोंट नो वेदर यू ऑल नो और नॉट, ऑल द प्रोस्टिट्यूट्स दे वर्शिप कार्तिक है। मालूम है ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मालूम नहीं है। एनीवेज, बिकॉज बैचलर, so all the prostitutes they worship Kartikeya because supposed to be very very fit and fine and beautiful, be handsome, sorry. So यहाँ वैसा उनका रूप है, but again उनको ऐसा करके हम लोग को सोचना चाहिए कि you know, I don't know much about Kartik actually, how demigod, what kind of demigod it is, but वैसे करके भगवान उनको किस प्रकार से उनको नियुक्त किया गया, वैसे सोचकर उनको भगवत केंद्रिक सबको दर्शन करना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। जब आप पंडाल के सामने जब इस विग्रह को, पूरा दुर्गा देवी का पूरा एकदम पूरा सेट को आप दर्शन कर रहे हैं, तो मैं जस्ट अपना एंगल से बताया, आप दूसरा एंगल से, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस आंख से इसको समझ लेना चाहिए। संगनी शाह प्रिया माता जी। हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रही थी, जैसे अभी ना दुर्गा जी को भी देखते हैं तो बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत उसे कृष्णा दिखते हैं, गणेश जी में कृष्णा दिखते, लगता है कितने खूबसूरत लग रहा है। मतलब सोच चेंज हो गया, देख मतलब प्यार बहुत ज्यादा आता है, जैसे लगता है कृष्णा ही तो है, भावना भी है, तो बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग। प्रणाम कर दे, लेकिन कृष्णा दिखता है। यस, एक भक्त का दर्शन ऐसे ही होना चाहिए, एक वैष्णव का दर्शन ऐसा ही होना चाहिए। वो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं एकदम, जो ब्लैक है ब्लैक है, जो व्हाइट है व्हाइट है, कोई संदेह नहीं रहता उसका मन में। हर एक तत्व को जानता है, हर एक जगत में देखता है, तो एक चीज को देखकर समझ में आ जाता है उसका परिस्थिति क्या है। यस, केशवी जगत प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दुर्गा पंडाल में अगर हम लोग जा रहे हैं तो दुर्गा माँ को देखकर हम लोग ये भी तो प्रार्थना कर सकते हैं कि हम लोग को भगवान का भक्ति प्राप्त हो। क्या दुर्गा देवी नहीं खुश होंगी? और एक पंडाल में हम लोग गए थे तो उसमें देखे थे पंडाल के ओपनिंग में ही दशावतार लगा हुआ था, तो देख के इतना आनंद आया कि सब चीज मिसिंग रहता है पंडाल में, तो बहुत अच्छा लगा उस पंडाल में कि सब तक भगवान का रखा प्रभु जी, जो हमारे यहाँ पाड़ा में जो पंडाल है ना, वहाँ के कहीं से आते हैं, काफी अच्छा उनका व्यक्तित्व है। जो मेन वो प्रभु सारा मंत्र बोलते हैं, ओम ब्रह्म देवा गुरुर्ब्रह्मदा,
ये वाला बोलते हैं, ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य हरे कृष्णा देहाय बार पुष्पांजलि कराएंगे। कम से कम 10 बार हरे कृष्ण महामंत्र करवाते हैं, जगन्नाथ जी का करते हैं और गोविंद का, तत्व कांचन गौरांग, इसीलिए हम लोग को और अच्छा लगने लगे। बहुत अच्छे हैं, मतलब कि सब कुछ हम लोग का मंत्र बोलते हैं। अंदर में कृष्ण भावना मृति है, बस अपना धंधा के लिए कर रहे होंगे पूजा, नहीं मालूम। पूरा मतलब पूरा घुसता है, बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ वाले हम लोग के पंडाल वाले पूरा कृष्ण महामंत्र राधा रानी का हर बार बोलेंगे, दिन भर माइक में हरे कृष्ण महामंत्र होता है। प्रभु हरे कृष्ण, हरि बोल, धन्यवाद प्रणाम। जो चीज बोले, जो भगवान लक्ष्मी देवी को जो फाइनेंस का मैंने कंट्रोलर दे दिया, लेकिन भगवान बोला है जब जरूरत होगा हम हरण कर लेगा। लेकिन सरस्वती को जो ज्ञान का पावर दिया, लेकिन सरस्वती प्रॉमिस कर लिया मेरा ज्ञान हरण नहीं कर सकता है। ये तो डिफरेंस पावर हो गया ना। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मैं जब भी देवी के सामने जाती हूँ कभी, तो मैं यही कहती हूँ कि 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बाहर निकलने में मदद करिए, क्योंकि वही तो जकड़ के रखी है ऑलवेज। एंड एक बार बाहर निकल गए तो ऑटोमेटिकली वी विल मूव मच फास्टर इन द पाथ ऑफ भक्ति। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बाहर निकलने में मेरी मदद करें। वेरी नाइस। ये सब उनका अस्त्र शस्त्र है। अभी सोचिए, आप जेल में कोई जेलर को रखे हैं, तो जेलर को भी तो कोई डराने के लिए, प्रिजनर को डराने के लिए गन दे दीजिएगा ना। गन, ये लीजिए आपका पर्सनल गन, ये लीजिए लाठी। कोई झमेला करेगा तो पिटिएगा इससे। ये लीजिए कुछ ऐसे करके दुर्गा देवी को भी उन्होंने ये त्रिताप क्लेश दे दिया। जब एक काम करो, आप ये सब देकर उनको फंसा के रखो। फिर ये 3 गुण दे दिया व्यक्ति को, उसमें डुबा कर, रजोगुण तमोगुण में डुबा कर रखना। तो ये सब आयोजन मैं भी कर दूंगा आपके थ्रू। भगवान बताते हैं। तो ये सब उनका अस्त्र शस्त्र है, तो हम लोग ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं जैसे माता जी ने बताया। वेरी नाइस। रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कितने लोग ऐसे भक्त हैं प्रभु जी, फिर भी वो घर में बैठा के पूजा करेंगे, 9 दिन का व्रत करेंगे और कहेंगे कि क्या हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है, और हैं इस्कॉन से भक्त हैं, फिर भी वो पूरा एकदम समर्पण माता रानी। उसी तरह है, इन लोग ठीक उसी तरह है जिस तरह जब भगवान कोई अवतार में असुर के साथ युद्ध करता है। जैसे आप देखे होंगे भगवान वराह अवतार में हिरण्यनाक्ष के साथ युद्ध करता है। उस समय सब देवी देवता लोग छुप छुप के देख रहे थे ना ऊपर बादल से। हाँ प्रभु, हाँ। भगवान हिरण्यनाक्ष को पीट रहा था, तो सब सामने आकर हरि बोल कर रहा था, भगवान के ऊपर फूल बचा। और जब हिरण्यनाक्ष थोड़ा भगवान को धक्का दे दिया, तो इन लोग तुरंत बादलों के पीछे जाकर छुप गया। क्यों? अरे हिरण्यनाक्ष अगर हम लोग को देख लेगा कि हम लोग भगवान की तरफ बोल रहे हैं और भगवान बाद में हार गया, तो फिर हिरण्यनाक्ष हम लोग को पीटेगा ना। ठीक उसी तरह हम इतना साल इस्कॉन में आने के आगे इस देवी का आराधना कर रहा था, और सोचिए बाद में पता चला कि भगवान कृष्ण नहीं है, ये देवी है, तो फिर भगवान हमको पिटेगा ना। ये सोच करके एक काम करते हैं, हम क्लास भी ज्वाइन करेंगे, हम इस्कॉन से दीक्षा भी ले लेंगे, 4 नियम 16 माला भी करेंगे, और छुप छुप के दुर्गा पाठ भी करेंगे, और ये जो हम देवी देवता का उपासना करें वो भी करेंगे। लेकिन प्रभु जी नहीं करना चाहिए। हम लोग सुनते हैं कि, और सुनते भी हैं कि भगवान प्रसन्न, हर देवी देवता प्रसन्न होते हैं भगवान कृष्ण की आराधना करने से, फिर भी नहीं मानते हैं। तो देखिए, पहले श्रद्धा कोमल रहता है, वो तो हम लोग को भी समझ में आता है। ऐसा नहीं कि हम लोग भी रातों रात सब एकदम इस्कॉन वाले हो गए और सब कृष्ण भक्त हो गए, ऐसा नहीं, रातों रात संभव नहीं है। वो अगर कोई हो भी जाए तो उसका खोखला है। अगर रातों रात कोई अवैष्णव से वैष्णव बन गया, वो डेंजर है, वो ज्यादा मेडिसिन ले लिया। सोचिए, दवाई दिया आपको, दवाई पूरा आपने पी लिया। तो हाँ, वो भी बकवास है एक्चुअली। लेकिन बिकॉज इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आपका चेतना परिवर्तन, आपका सब कुछ, वो तो समय इट इज अकॉर्डिंग टू टाइम। बट इतना साल इतना श्रवण करने के बाद हरिनाम दीक्षा ले लिया, माने आपको आप दीक्षा ले लिया, मतलब क्या? आपको इस फिलोसॉफी में श्रद्धा है, उसीलिए आप कदम उठाया।
है ना। लेकिन इतना कुछ करने के बाद, इतना आगे बढ़ने के बाद भी पीछे वो आंचल पकड़ रखा हुआ है देवी का। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको पूछूंगा। तो ये मूर्खता बोलिए या आई डोंट नो व्हाट, भगवान में श्रद्धा पैदा नहीं हुआ, लेकिन आप आगे बढ़ गए। वो बाहर आप आगे बढ़ गए, लेकिन अंदर ही अंदर वो पीछे अभी भी वो आंचल पकड़े रखे हुए हैं दुर्गा देवी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये हमारे तब गुरु के प्रति अपराध हुआ है ना। भगवान के प्रति अपराध, गुरु के प्रति अपराध, सब। यस प्रभु जी। सत्यभामा माता जी, तो वो इसको तो व्यभिचारिणी भी बोलते हैं ना। एकदम कठोर शब्द यूज किया गया है शास्त्र में, लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। तो हमें एक निष्ठ बनना होगा एकदम। तो ये, और तो शास्त्र में भी बताया है कलयुग में सब ब्राह्मण, जितना भी ब्राह्मण जनेगा सब, ये कृष्ण लीला में जितना भी असुर थे उन लोग कलयुग में ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, ऐसे बोला गया। ऐसे बोला गया है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा बोला गया है। और क्या बोला गया है, इन लोग सब ये व्यभिचारिणी क्यों? बिकॉज अब देखिए ना, पंडाल में कोई ब्राह्मण को देखे तो क्या करेगा, पहले जाकर कहीं जो उनको टाका देगा उसके घर में जाकर सरस्वती पूजा करेगा, और सरस्वती को भगवान रूप में उनका पूजेगा, आराधना करेगा। फिर जब सीजन आएगा विश्वकर्मा का, विश्वकर्मा पूजा करेगा, उनका भी आराधना करेगा। फिर जब टाइम आएगा दुर्गा पूजा का, फिर दुर्गा देवी के घर में जाकर दुर्गा पूजा करेगा। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग लोगों को, अलग अलग देवी और देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। ये किनका स्वभाव होता है, अलग अलग व्यक्ति को प्रसन्न करने का? इसीलिए इतना कठोर शब्द बताया गया शास्त्र में। हाँ, क्या संगिनी शाह पे माता जी? यस प्रभु। नहीं, आपका हाथ हैंड रेज्ड है, मैं सोचा आप कुछ बोलेंगे। ओ अच्छा। तो टाइम है? नहीं, टाइम है थोड़ा। क्विज है या नहीं है माता जी? सुधा में बोले भी माता जी। लेकिन प्रभु जो ब्राह्मण के बारे में हाँ प्रभु जी है। तो नहीं, मैं आप बोलना तो चाहती ब्राह्मण के बारे में बता रहे, वो तो बहुत अच्छा है, वो वैष्णव होगा शायद। हाँ, ये तो इनका अच्छा। और जैसे अल्प ज्ञानी लोग के लिए तो देवी देवता है ना प्रभु। नहीं तो जैसा था ना मामा से काना मामा अच्छा, नहीं तो उन लोग भावनामृत नहीं हो तो असुरी बना रहेगा। तो उन लोग के लिए तो भाई देवी देवता तो है, नहीं तो कोई तरीके से एंगेज है उन लोग। मैं यहाँ इस्कॉन का भक्त के लिए के बारे में चर्चा कर रहा था, जो लोगों का दीक्षा हुई। तो क्या प्रसन्न चल रहा है कि जिन लोगों का दीक्षा हो गया। मैं अल्प बुद्धि वाले का बात नहीं कर रहा, जो हरिनाम दीक्षा ले चुका है उनके बारे में आलोचना कर रहा था। नहीं प्रभु, जो ब्राह्मण को लेके जो मतलब ब्राह्मण लोग जो कर रहा है, तो उन लोग तो अल्प ज्ञानी लोग को लिए, नहीं तो फिर उन लोग और बेकार हो जाएगा। इतना तो मतलब भावनामृत थोड़ा तो होगा, मतलब पूजा पाठ तो जानेगा, नहीं तो असुरी बन के रहेगा। ये बोल रहे, हम फेवर नहीं दे रहे, जस्ट बात कर रहे। होता है ना मामा से काना मामा अच्छा, नहीं तो जुड़ो। अगला श्लोक। तो अभी ब्रह्मा जी ने 2 कारण बता दिया है भगवान श्री कृष्ण। आप लोग सब कल्पना कीजिए, भगवान सामने है, इनको लज्जा लग रहा है, गोवत्स से चोरी वोरी करके, फिर बाद में पता चला ये साक्षात भगवान कृष्ण है। अभी ब्रह्मा जी के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, और फिर ब्रह्मा जी उनको बोल रहे हैं। 43 नंबर श्लोक ध्यान से देखिए। तृतीयो कारणो सुनो श्री भगवान अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। हे प्रभु, हे परमेश्वर भगवान, दया करे हमार तृतीय कारणटी श्रवण करो। कौन सा कारण बने क्या? वो ही इज ट्राइंग टू प्रूव दैट आप ही मेरे ओरिजिनल फादर मदर। अनंत ब्रह्मांड वैकुंठादि धाम রয়েছে, ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম। দাদু, ইচ্ছে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম, তা দেখো সাক্ষী তুমি জানো সব মর্ম। তাহা দেখো সাক্ষী তুমি জানো সব মর্ম। ব্রহ্মা জি बोल रहे हैं, এই জড় জগৎ ও চিৎ জগৎ সমস্ত জীবের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কার্যকলাপ তুমি প্রত্যক্ষ করো। ইউ নো এভরিথিং, আওয়ার ফিউচার, প্রেজেন্ট, পাস্ট। যেহেতু তুমি হচ্ছ সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী परमात्मा रूप में, ताई तुम्ही सब किचुर मर्म जानो, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, यू नो एवरीथिंग। ब्रह्मा जी बोल रहे कृष्ण को।
তোমার দর্শনে সর্ব জগতেরও স্থিতি, তোমারও দর্শনে সর্ব জগতেরও স্থিতি, তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতি গতি। তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতি গতি। সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে তুমি তাদের পরিচালনা করো বলেই সমস্ত জগতের স্থিতি হয়। সমস্ত কার্যকলাপ, জীব का समस्त कार्य प्रत्यक्ष करार माध्यमे यू आर देयर एज अ विटनेस परमात्मा रूप। आप सब देख रहे हैं जीव क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, सब कुछ आप सब कुछ से आप अवगत है। তুমি তাদের পরিচালনা করো বলেই সমস্ত জগতের স্থিতি হয়। তোমার এই রকম পরিচালনা ব্যতীত কোনো কিছুই স্থিতিশীল বা গতিশীল হতে পারে না, অথবা কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। 46 नंबर श्लोक। नारीर অয়ন যাতে কর দর্শন, নারেরও অয়ন যাতে কর দর্শন, তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ। তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ। তুমি সমস্ত জীবের কার্যকলাপ দর্শন করো, সেই কারণে তুমি হচ্ছ মূল নারায়ণ। পরমাত্মা রূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত অপ্রাকৃত উভয় জগতের সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। পরমাত্মা রূপে তিনি হচ্ছেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ সর্বলোকের সর্বজীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। জীব তার পূর্বের শত সহস্র জীবনে কি করেছে তা সবই শ্রীকৃষ্ণ জানেন, এবং বর্তমানে তা কি করছে তাও তিনি জানেন। তাই তাদের বর্তমান কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তার কি ধরনের ফল লাভ করবে সে সম্বন্ধে তিনি पूर्णरूपे अवगत। इसलिए अगर भगवान फ्यूचर जानते हैं माने क्या, भगवान फ्यूचर जानते हैं माने ये जैसे हरकत कर रहा है इसका फ्यूचर क्या होने वाला है भगवान को मालूम है। हिंदी में, इंग्लिश में कहावत है ना, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहावत है? इफ यू वांट टू मेक कृष्णा लाफ प्लीज टेल हिम अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। अगर भगवान को हंसाना चाहते हैं तो अपना फ्यूचर प्लान के बारे में बताइए। हे प्रभु, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करके इतना ये डिग्री हासिल करूंगा, फिर मेरे पास बहुत टका रहेगा और वो टका से मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ये खरीदूंगा और मैं पूरा आराम से रहूंगा, हरि बोल। और भगवान हा 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 करके हंसेंगे, बोले इसका आज ही मृत्यु होने वाला है, क्या क्या प्लान कर रहा है। ऐसे करके भगवान हंसेगा। तो इसीलिए अगर भगवान को आपको हंसाना है ना तो अपना फ्यूचर प्लान के बारे में भगवान को बताइए। तो हाँ, तो भगवान, तो हम लोग बोलते हैं ना भगवान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानता है। तो देखिए, पास्ट तो जो हो चुका है वो तो एकदम सत्य है, वो जानता है भगवान। प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है, आपका मन में क्या है, भगवान जानता है। लेकिन फ्यूचर के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा अलग चीज है। अभी फ्यूचर के बारे में क्या हो सकता है ये भगवान जानते हैं, क्या होने वाला ये नहीं जानते, क्योंकि आप बदल सकते हैं। We can change our future। भगवान सीमित स्वतंत्रता दिया है तो हम अपना फ्यूचर बदल सकता है, और भगवान जो सोच रहे हैं वो भगवान खुश हो जाएंगे। अगर हम लोग सोचिए, देख रहे हैं कि अभी राजकुमार कृष्णदास जो हरकत कर रहे हैं तो फ्यूचर में नरक में फ्राई होने वाला है, होने वाला है, हो सकता है, ऐसे सोच सकते हैं। होगा ये तो नहीं जानता, क्योंकि राजकुमार कृष्णदास भक्ति करके वो परिवर्तन भी कर सकता है ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया। क्या था भगवान जानता है, क्या है ये भी भगवान जानता है, लेकिन क्या होने वाला है, होने ये तो बोल नहीं सकते होने वाला है, बोल सकते हो सकता है, हो सकता है और होगा, दोनों में फर्क है ना। सो फ्यूचर का अनुमान लगा सकता है भगवान की ये जिसका हरकत है इसके लिए ये होगा या हो सकता है, लेकिन उसको उस जीव परिवर्तन भी कर सकता है अपना सीमित स्वतंत्रता से। वी कैन चेंज आवर फ्यूचर विद आवर लिमिटेड इंडिपेंडेंस। तो भगवान बोलेगा, भगवान मेरी खुश हो गया, वाह मैं सोचा था क्या ये होगा, लेकिन देखिए भक्ति करके क्या परिवर्तन हो गया। उल्टा भी हो सकता है कि जिस तरह ये भजन कीर्तन कर रहा है, लग रहा है तो मेरे पास बहुत जल्दी आएगा, लग रहा है तो
तो कोई बोल सकता है भगवान क्यों बोलेंगे, लग रहा है तो यस, क्योंकि जीव में के हाथ में वो स्वतंत्रता दिया हुआ है. सो फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल इवन फॉर द लिविंग एंटिटी, इवन फॉर कृष्णा, बिकॉज दैट लिविंग एंटिटी हैज बीन गिवन. वो जीव को स्वतंत्रता दिया हुआ है, वो परिवर्तन कर सकता है. क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तीनों में अंतर समझा आपने, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में? यस प्रभु जी, यस. कोई अगर बोला कि भगवान निर्धारण करके रखा है आपका फ्यूचर, तो भगवान फिक्स करके रखा है. नो, वी कैन चेंज आवर फ्यूचर. ये चीज समझना पड़ेगा. इसलिए फ्यूचर के बारे में आप बोल नहीं सकते भगवान के हाथ में है. भगवान के हाथ में क्या है? वो आपका हाथ में है. भगवान आपको सीमित स्वतंत्रता दिया है और उसको भगवान इंटरफियर नहीं करता है. तो इसीलिए आप गाड़ी कहीं भी स्टीयरिंग घुमा सकते हैं, भक्ति की ओर या नरक की ओर. तो अगर बोलेंगे फ्यूचर, सो बी केयरफुल, उसका कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे. करुणा राधे माता जी. Hare Krishna Prabhu. Can we say future depends on our present deeds, what we do now? Absolutely. Future depends on that. Absolutely. And the present deeds in our hand. ये बोलना गलत नहीं होगा. Yes. कि भगवान सीमित स्वतंत्रता दे के रखा है. हाँ, it's in our hands. So you can't say that future भगवान फिक्स करके रखा. नहीं, ये आप चेंज कर सकते हैं. सची सुधनाथ श्रीवास प्रभु. এই জন্যই তটস্থ, আমি এই পারে যাবো কি ওই পারে যাবো. হ্যাঁ, এমন না যে ভগবান আপনার পেছনে এসে একটা লাথি মারবে আর বলবে যাও দিকে, এরকম করে. नो, कृष्णा विल नॉट इंटरफियर. वो आपका हाथ में दे देगा. उसीलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्. जो जैसे जैसे करना चाहता है वैसे वैसे मैं उनको आयोजन कर देता हूँ. लास्ट सेंटेंस. भागवत गीताয় বর্ণিত হয়েছে যে জড়া প্রকৃতির প্রতি তার দৃষ্টিপাতের ফলে জড় সৃষ্টির প্রকাশ হয়. তার অধ্যক্ষতা ব্যতীত কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না. যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষ জীবের আশ্রয়স্থল স্বরূপ মহাবিষ্ণুকেও প্রত্যক্ষ করেন, তাই তিনি হচ্ছেন মূল নারায়ণ. लास्ट वाला सेंटेंस हिंदी पढ़िए. चूंकि वे उस स्थान को भी देख सकते हैं जहाँ समस्त जीव समुच्चय आश्रय लेता है, अतः एवं वे मूल नारायण. इंग्लिश प्लीज. Nothing can exist without his superintendence. Since he sees even the abode where the collective living beings rest, he is the original Narayan. अच्छा, कलेक्टिव माने समस्त को जीव जेखने अच्छा, वो भी तो देख रहे ऊपर से भगवान. ओ, सब जीव अभी इस ब्रह्मांड का सब जीव हमारा महाविष्णु एक्सपेंशन के अंदर में है. तो इसीलिए आदि नारायण, मूल नारायण भगवान कृष्ण है. এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী. মদন ভরিয়া সবে বলো হরি হরি. हरि बोल.